Hi everybody, welcome back to On the Move. I'm your host Meghavi Solanki, and the second host for the podcast is missing today as she is ill, but we miss you, Riddhi. Today's episode, we are not just talking about business, we're talking about the mindset behind that business. We're talking about ideas, risks, and the electric dream. Today we'll be diving into the journey of White Carbon Motors, and we have a very special guest joining us here, the founder of White Carbon Motors, Mr. Pratik Sankla. Welcome, sir. Thank you. How are you feeling today? Bit nervous. Why? No, but it is fine. Okay, ठीक है. okay. पहला podcast है. हाँ, right. पहला podcast, many more to go. Yeah. I believe, yes. So, sir, for those who don't know you, how would you describe yourself and how would you describe White Carbon Motors? So the people who don't know me, I'm Pratik Singh Sankla, the founder of White Carbon Motors. Introduction already given. So I've done my BTech in mechanical engineering, and then later on I did my masters in machine designing, and I was little bit passionate about the things of which can come into the future and in the next era, I would say. So I was passionate about those things. I did my masters. My major project was related to 3D printing only. So again, that is also a future technology which I had done at my masters. And about White Carbon Motors, it is about redefining mobility. And when I say mobility, it is not just the commute from point A to point B. It is something that it is your own baby which you carry everywhere you go, and that is what we are trying to redefine it. And not only just with the specific designs, specific aspects. ऑलरेडी बहुत सारे स्कूटर सिमिलर आप लोगों ने देखे होंगे, बट वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट समथिंग न्यू, एंड इट इज़ अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, it is about solving the problem of green energy, trying to create this better environment friendly ecosystem. And this is all about White Carbon Motors, that we are trying to solve the logistics and the commute of day-to-day people on every basis. Okay, so that's great. So, thank you for such a good introduction. We'll be moving to our segment 1, that is the person before the founder. So, sir, like you mentioned babies, so let's go back to that point. Take us through your childhood, tell us about what led you to this point, what led you to become an owner of such a successful startup. So, yeah, बचपन में I'm a passionate, मतलब I had a passionate childhood, और पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन नहीं था मेरा. आई वॉज ए एवरेज स्टूडेंट, बट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, डांस, एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जहाँ पे भी फिज़िकल प्रेजेंस होता था, वहाँ पे आई ट्राई टू आउटशाइन एवरीवन. जितने भी मेरे बचपन में फ्रेंड्स है, तो ये हमेशा से, मतलब इट केम नेचुरली. कभी भी ऐसा रहा नहीं. एंड आई एम अ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन. तो विच ब्रिंग्स, मतलब मुझे ऐसे कभी अभी मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है. एंड एक चेंज हमेशा मुझे पसंद है. मैं कभी भी कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं पकड़ के चलता हूँ कि जैसे अगर पूरी दुनिया राइट चल रही है तो पता नहीं क्यों, बट मुझे राइट जाना पसंद नहीं होता है. आई ट्राई टू फाइंड अनदर वे, अनदर रूट्स, एंड आई ट्राई टू मेक माई ओन रूट्स. एंड यहाँ पे ही मुझे ये चीज़ समझ में आई. सो बिफोर दिस आई वॉज इन अ कंपनी. वहाँ पे भी एक स्ट्रेटेजिक फ्लो में सारा काम चलता था. मैंने इंडस्ट्री के गैप्स ढूंढे. मुझे कुछ लग रहा था कि ये पॉइंट्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं. तो आई इन सॉर्ट ऑफ, मुझे हमेशा से चैलेंजेस सॉल्व करना पसंद था, एंड ट्राई टू फाइंड द न्यू वे, या नए नए आउटकम्स निकालने का हमेशा मैं सोचता हूँ. सो ये आई थिंक ये मुझे मेरे बचपन से ही मिला है. तो कहीं ना कहीं वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है. ओके. एंड सर, लाइक कैसे, मतलब आपको, मतलब जस्ट यू जस्ट हैड दिस thing in you that I don't want to continue the job anymore. I mean, मतलब was it because you are not a job person, or did you feel so highly about something, so passionately about something that you were like कुछ भी करना है पर खुद का ही कुछ करना है, like the point you talked about, you know, growing your baby. जब मैं इससे पहले काम कर रहा था तो मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन, काफ़ी स्केल देख लिया था. मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के 21 स्टेट्स को मैंने ट्रैवल किया था पर्सनली. एंड सारे स्टेट्स में मैं जाके बहुत सारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोगों से मिलता था, उनकी प्रॉब्लम सुनता था, समझता था.
एंड ट्राई करता था कि उसको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। फिर मैं एक बार जैसे ही हम लोग नेपाल का मार्केट टैप कर रहे थे तो आई वेंट देयर। जब मैं नेपाल के मार्केट में गया, आई स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड वहाँ का पूरा इकोसिस्टम समझना, वहाँ पे रोड्स, रास्ते, वहाँ के लोग, यूज़ केस, सारी चीज़ें समझनी थी। तो वो समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो ज़रूरी है। उस 1 मंथ के अंदर मैं रोज़ होटल से लोकेशंस पे जाता था, अलग अलग लोकेशंस पे जाता था, होमोलोगेशन के पार्ट्स देखता था, ये सब कुछ सारी चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली चल रही थी। तब मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि एक गैप मैंने देखा कि यार रोज़ मैं इतना सारा पे कर रहा हूँ एक टैक्सी ड्राइवर को, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जाने के लिए अलग से मुझे एक टैक्सी करनी पड़ रही है, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो शायद वही पॉइंट था जो मुझे सबसे ज़्यादा क्लिक हुआ कि मैंने उस होटल के ओनर से भी बात करी कि वाई डोंट यू पुट एटलीस्ट 4-5 रेंटल स्कूटर्स, कि जिसको भी अगर कोई ज़रूरत हो तो वो बस ले और अपना काम फिनिश करे और उसके बाद में वो आ जाए वापस। तो उसने भी बोला कि कर सकते बट ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे ये इंडस्ट्री का गैप लगा, मुझे लगा कि ये कम्यूट से रिलेटेड ही चीज़ है और मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे सॉल्व करनी चाहिए। तो 2020 में मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, वाइट कार्बन मोटर्स, एंड उसके बाद में द जर्नी स्टार्टेड। और इनिशियली भी पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस यही था कि हम लोग वाइट कार्बन से हम लोग होटल्स को ही टैप इन करेंगे, बट कोविड हैपेंड एंड द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्रैश्ड। तो फिर हमें पिवट लेना पड़ा सरवाइव करने के लिए। तो बट ठीक है, हम लोगों ने कर लिया। वी जस्ट somehow managed that wave and we survived, क्योंकि शायद इंडस्ट्री का पुराना एक्सपीरियंस था, तो हम लोग वापस D2C के अंदर आए और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करके हम लोगों ने जस्ट टू सर्वाइव द कंपनी। बट लेटर ऑन एंड लॉन्ग टर्म विजन में हमारा वही है कि आई विल स्टिक टू माई विजन और विल जस्ट टेक द कंपनी टू दैट पॉइंट। ओके, सो वी कैन एस्टैब्लिश दिस पॉइंट कि ग्रोइंग अप आप काफ़ी मतलब अडेप्टिव वैसे भी थे। तो मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर से था ही कुछ कि खुद का कुछ करना है या समथिंग, और यू नो यू विल डू वेल वेरेवर यू आर। सो इतना मुझे कंफर्म है, इतना मुझे पता है कि मुझे कोई भी चीज़ करनी होगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम कोई भी काम मैं करूँगा, मुझे नहीं पता लाइफ में आगे और क्या क्या काम होने वाले, बट जो भी काम होंगे आई नो कि आई विल ट्राई टू डू दी बेस्ट थिंग। शायद इंडस्ट्री में बहुत लोग करते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेटर करूँगा। ओके, सो सर ऑन अ फनी नोट, हैव यू एवर हैड अ मोमेंट एकदम फनी वे में वेयर यू आर लाइक व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस कंपनी, एकदम एनी फनी इंसिडेंट दैट यू हैव जहाँ पे यू आर लाइक शिट क्यों? हाँ, कोविड के होते ही हमें ऐसा था कि लॉकडाउन लगे हुए थे एंड जैसा कि मैंने बताया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो क्रैश हो गया था, तो अगेन हमें वापस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने थे। तो ये डीलर्स को हम लोग फ़ोन करते थे, तो पहले हमारा प्रोसीजर ये होता था कि डीलर्स हमारे यहाँ पे विजिट करते थे, प्लांट देखते थे, गाड़ियाँ देखते थे, प्रोडक्ट देखते थे, एंड फिर उसके अंदर वो व्हीकल फाइनलाइज करते थे। बट उनका विजिट ही कैंसिल हो गया था, दे वर नॉट अलाउड टू इंटरस्टेट मूव, मतलब कम्युनिटी बंद था। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने गाड़ियाँ, हम लोग यहाँ से एक एक गाड़ियों को वाया सरफेस ट्रांसपोर्ट हम लोग कुरियर करके उनके पास भेजते थे। तो वो जब भी वो गाड़ी जाती थी, मन में वो जब तक वो गाड़ी वहाँ पे पहुँच नहीं रही है तब तक हमेशा मन में ये होता था कि हम लोग क्या ही कर रहे हैं और क्यों ही कर रहे हैं। मतलब एक डीलरशिप के लिए हम उनको वहाँ पे गाड़ी भेज रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट राइड करेंगे, उसके अंदर पसंद आएगी तो वो डीलरशिप लेंगे, नहीं पसंद आएगी तो शायद वो नहीं लेंगे। मतलब वो पॉइंट पे हर बार ऐसा लगता था कि मतलब क्यों ही कर रहे हैं और क्या ही कर रहे हैं। बट फनी वे में तो नहीं था वो, बट जब बिल्स पे करने होते हैं तब सब फिर बाद में ऐसा होता है कि नहीं करना पड़ेगा। तो बट अगर शायद मैं आज देखूं अपने आप को तो मैं उसमें कुछ और बेटर कर सकता था, बट ठीक है। एंड सर, आप फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? टेल अस द सीक्रेट्स। तो मैं बैक बेंचर था, मतलब ऐसा था कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। तो क्लास में पूरी क्लास से एक अलग एक साइड में एक बेंच होती थी द मोस्ट टॉकेटिव पर्सन की, तो मैं कई बार उस पर बैठा हुआ हूँ।
तो ना ही वो फ्रंट ना ही वो बैक होगा, बट ठीक है. Damn. All the backbenchers out there, you have your hope. Your hope is sitting here. You could be this one day. So now we'll be moving to segment 2, which is why EVs, why this mission. So sir, I wanted to ask you कि what, like you explained your reason कि आपने एक gap देखा and that is where you wanted to start, but was like the EV industry your starting से mission या मतलब there would be some other industry that you think you would have done really well अगर वहाँ पे भी startup का सोचा होता तो, या why particularly सिर्फ यही, why the gap in this, was it because your job was aligned to this या what was the reason? सो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. सो आफ्टर माई मास्टर्स मैंने एक वेंचर किया था विच वॉज ऑल इन 3D करके था. तो जहाँ पे मैं 3D प्रिंटर तो मैंने डिज़ाइन किया ही था, एंड मैं काफ़ी कुछ डिज़ाइनिंग फ्री हैंड में, मतलब मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन बनाता था. एंड फिर वो एज अ मतलब लोगों के वो हम लोग मैं वो बिजनेस मॉडल बनाना चाह रहा था कि नॉट जस्ट सेलिंग द 3D प्रिंटर्स, बट 3D प्रिंटर्स से जो बनाए हुए पार्ट्स हो गए, वेदर इट कुड बी एनी एस्थेटिक डिज़ाइन. जैसे एक टाइम आया था हमारे टाइम पे कि एक वो कुछ होता है ना जिसको बोलते हैं, वो घुमाते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, फिजिट स्पिनर. फिजिट स्पिनर. तो वो उस टाइम पे बहुत वायरल हुआ था. तो मैंने वो 3D प्रिंटर पे बना के वो क्योंकि जस्ट वो उस टाइम पे वायरल हुआ था एंड डिमांड थी मार्केट में, सप्लाई कम थी, तो मैंने वो 3D प्रिंटर से बना के उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था. तो ये एक टेक्नोलॉजी थी, वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग के. आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो वो फिजिकली प्रिंट हो जाएगा. बचपन में हमारे टाइम पे कार्टून आता था, शाकालाका बूम बूम करके एक पेंसिल आती थी, तो जिसमें वो बंदा कुछ भी ड्राइंग करेगा ना तो वो ड्राइंग रियल में बन जाती थी. तो 3D प्रिंटर वाज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे ड्रॉ कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, एंड यू गिव अ प्रिंट कमांड, तो वो 2D प्रिंटर में प्रिंट बन के आती है. बट 3D प्रिंटिंग में वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर बना के दे देती है. बट द मशीन हैज़ इट्स ओन लिमिटिंग. बहुत सारे लिमिट्स थे उसके. साइज कंस्ट्रेंट होता था, फिर अलग अलग टाइप के मटेरियल की भी प्रिंटिंग्स होते थे. तो दैट वाज ऑलरेडी अ फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन. लोग तो यूएई में लोग घर बना रहे हैं 3D प्रिंटर से, जिसमें लोग रह सकते हैं. तो उसमें किसी भी मैन पावर की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली वो खाली मशीन ही पूरा का पूरा घर बना रही. बट अगेन दैट मशीन, दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कंस्ट्रेंट. बहुत सारे लिमिटेशंस थे. सो उसके बाद में मुझे वो लिमिटेशन समझ में आए, तो मुझे लगा कि यहाँ पे शायद ये स्केल नहीं हो सकती है टेक्नोलॉजी, या स्केल होने में भी चैलेंजेस बहुत रहेंगे. So I opt for another futuristic technology which was shining at that point of period was EV. Okay. EV का boom आ So रहा we're है. talking which year? So this was in 2017. Okay, 2017. So 2020 yeah. Okay. So उस टाइम पे हम लोगों ने फिर मैंने देखा, तो आई जस्ट वांट कि भाई EV तो है, समझ में आ रहा है कि EV है, बट उससे पहले भी EV आ चुका था. ऐसा नहीं था कि EV आया नहीं था. EV केम इन 2000, अर्ली 2007 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इलेक्ट्रोथम यो बाइक करके कंपनी आई थी. और वो सबसे पहला EV लेके आई थी. बट उस टाइम पे EV के लिमिटेशंस थे कि स्पीड नहीं थी, परफॉर्मेंस नहीं था, 2 लोग बैठ जाएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, ब्रिज नहीं चढ़ सकती है, ये है वो, देयर वर सो मेनी थिंग्स. बट 2017 पहुँचते पहुँचते द टेक्नोलॉजी गॉट इवॉल्व, एंड मैंने तभी EV इंडस्ट्री को ज्वाइन किया टू गेन ऑल द नॉलेज. तो मेरा कभी भी ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि मैं वहाँ पे जॉब करने के लिए जा रहा हूँ. मैं उस कंपनी में 48 आवर्स तक लगातार मैंने काम किया है. मैं नहाया नहीं हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, मैंने काम किया है जस्ट बिकॉज हमें, मतलब मेरा एक पर्सनल ग्रज था कि उस टाइम पे मल्टीपल 4 ही कंपनियाँ थी जो मार्केट लीड करती थी. और उस साल जब मैं प्रोडक्शन लीड कर रहा था, तो मेरा गोल ये था कि वी वांट टू बी द लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर इन एट दैट पॉइंट ऑफ पीरियड इन इंडिया. 2018 की बात कर रहा हूँ. एंड इट वाज समवेयर अराउंड 24% मार्केट शेयर हम लोग होल्ड कर रहे थे. और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट नंबर था कुछ 11,400 गाड़ियाँ हम लोगों ने दिवाली वाले मंथ में प्रोड्यूस की थी. 11,400 गाड़ियाँ, मतलब प्रोड्यूस नहीं की थी, मतलब सेल की थी, ऐसा प्रोड्यूस के अलावा भी. सो आई थिंक वो एक चैलेंज मैं खुद लेके चलता था, और ये सब मैं मेरी खुद की लर्निंग के लिए था. मुझे ये तो
श्योर था कि मुझे शायद जॉब नहीं करनी है। अगर मैं खुद की ईवी कंपनी नहीं खोलता तो शायद मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा होता या मे बी शायद डिस्ट्रीब्यूशन होता मेरे पास में, बट मेरा खुद का टेक्नोलॉजी होता या कुछ, तो मेरे को इसके अंदर इनोवेशन लेके आना था। दैट वाज फॉर श्योर। तो पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में, एंड उसका एडवांटेज उस कंपनी को भी मिला था। कंपनी ऑल्सो स्केल्ड वेरी हाई, एंड मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा वर्क कर गया था। Okay. And sir, would you say कि because as somebody who is still very new to पूरा EV sector वगैरह, sir, would you say there are some misconceptions, some myths about EVs that you would want to burst, या you feel कि ये तो कितना, ये क्या है, मतलब ये लोगों को क्यों लगता है? सो ईवी का नाम सुनते ही सबसे पहली जो चीज़ लोगों के दिमाग में आती है वो होती है कि रेंज एंग्जाइटी। अच्छा। लोगों को ये है कि ये इतना चलेगा क्या, या मैं बीच में बंद हो गया क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे दिन में कितना ट्रैवल करते होंगे? सो पूरे दिन में आई थिंक आई वुड से 20 किलोमीटर्स टू माई ऑफिस एंड देन कमिंग बैक, सो 40 किलोमीटर्स जितना, 40, दैट्स इट। सो बेसिकली अगर आप कोई भी रैंडमली अगर आप स्टेटिस्टिक भी उठा के देखोगे या आप सर्वे भी करोगे अपने एंड से, सो डे टू डे लाइफ के अंदर लोग कम्यूट करते हैं नॉट मोर देन 80 किलोमीटर्स। मतलब 40 किलोमीटर्स जाना होगा, 40 किलोमीटर्स आना होगा। उससे ज़्यादा का होगा तो फिर वो इंडस्ट्री हो गई या वो कंपनी हो गई, वो अपने खुद के पर्सनल ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन लोग अपने पर्सनल स्कूटर से इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। सो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं मतलब मैक्सिमम उतना भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर आपको 100 किलोमीटर्स का रेंज मिल रहा है तो आपका एक दिन का काम हो रहा है, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। बट जस्ट बिकॉज रेंज एंग्जाइटी भी क्यों होती है, उसका पर्पज़ ये है कि आप पेट्रोल व्हीकल लेके जा रहे हो, आपको पता है कि आप 80 किलोमीटर्स ट्रैवल करने वाले हो। बाई चांस अगर आपका कहीं पे कुछ पेट्रोल ख़त्म हो गया तो यू नो देयर आर सर्टेन पेट्रोल पंप्स अवेलेबल। इसके लिए आप पेट्रोल पे इतना ट्रस्ट करते हो। बाकी आप फ्यूल उसमें भी 100 रुपये का ही भरवा रहे हो या 200 रुपये का ही भरवा रहे हो, जितना आपको ट्रैवल करना है उसके हिसाब से। तो ये सोचना कि भाई ईवी आपको इतना, एक्चुअल में इंसान उतना ही कम्यूट कर रहा है, पहले भी उतना ही कम्यूट कर रहा था, बाद में भी उतना ही कम्यूट कर रहा है। जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रा नहीं है इसलिए उनको ये चीज़ थॉट प्रोसेस आता है। बट वो थॉट प्रोसेस के साथ में ये भी समझना है कि आप उससे ज़्यादा कम्यूट कर ही नहीं रहे हो। तो पॉइंट चार्जिंग है, अभी है या डेवलप हो रहा है या होने वाला है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन हो गया। पहला तो क्वेश्चन यही है कि आप उससे ज़्यादा कम्यूट ही नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए 100 किलोमीटर्स इज़ मोर देन एनफ। राइट। तो ये लोग हमेशा फ्यूचर का ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा। कि अगर बंद हो गया तो क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या करेंगे। प्रॉब्लम आए नहीं, बट उससे पहले उसके सॉल्यूशंस के बारे में पूछते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता है कि कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स आ भी जाती है, बट सो डज पेट्रोल व्हीकल में भी आती है। ऐसा आज तक आपने अपनी लाइफ में कितनी बार देखा होगा कि लोग ड्रैग करके पेट्रोल पंप तक गाड़ी लेके जा रहे हैं। सो इट हैपन्स, इट इज़ वेरी कॉमन प्रोसीजर। बस कोई चीज़ नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करने में लोग घबराते हैं। सो दैट इज़, किसी को भी गिनी पिग बनने का शौक नहीं है, इसीलिए लोग मार्केट का वेट करते हैं। Right. So sir, from my observation, I've seen that you've built something that is very community driven, as well as product driven. So what is the reason for that? What is the reason for your emphasis on community and everything? So मैं जब छोटा था, मैं टीवी में एड्स देखता था ऑटोमोबाइल की। तो हमारे मतलब मैं जब टीवी देखता था उसमें MTV पे एक शो आता था, उसके अंदर पल्सर गाड़ी लेके आए, वो लोग स्टंट करते थे, ऐसा सब कुछ होता था। सो ऐसा नहीं है कि पल्सर से ज़्यादा पावरफुल कोई दूसरे मोटर बाइक्स नहीं है, बट वो एक परसोना बन चुका था, लोगों के दिमाग में हो चुका था। जैसे लेट्स से आपको लेह लद्दाख जाना है, तो आप कौन से 2 व्हीलर पे जाना प्रेफर करोगे? तो आपके दिमाग में एनफील्ड एक ब्रांड आ गया, राइट? सो वही चीज़ होती है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ को लोग पर्सनल टच देते हैं। आज अगर मैं किसी को पूछता हूँ कि आप पेट्रोल से ईवी में स्विच हो गए, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं उनको मतलब कमर्शियली मैं उनको कन्विंस कर लेता हूँ, मैं उनको सस्टेनेबिलिटी के वाइज भी कन्विंस कर पा रहा हूँ। कोई एक चीज़ जो है जिसके अगेंस्ट मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, वो ये है कि वो बोलता है कि भाई मेरी फील एक अलग चीज़ है। अब फील कोई चीज़ क्रिएट करी गई है, किसने बोला? स्प्लेंडर भी जाता है लेह लद्दाख, राइट, दूसरी बाइक भी जाती है, बट वो एक कम्युनिटी ड्रिवन एक पर्सोना बनाया गया है, राइट।
सो मुझे लगता है कि वो चीज़ को ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आता है, एंड मुझे चीज़ें भी ज़्यादा मैं खुद प्रैक्टिकली करता हूँ तो मैं ज़्यादा समझ पाता हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि वाई डोंट वी बिल्ड अ प्रोडक्ट विच इज़ अ वेरी कम्युनिटी ड्रिवन. तो उसको रिप्लेस करना वुड बी वेरी बिग चैलेंज फॉर एनी अदर प्लेयर्स ऑल्सो. True. And sir, what keeps you going? What keeps you motivated? Because I've also tried my hand at a lot of things. A lot of people would be able to relate. So daily basis पे what keeps you going towards that dream? Because आज के Gen Z में एक तो ये भी issue attention span का, you also know about it. So you get tired and bored of things very fast. So what is your motivation? What do you say to yourself on days, you know, when you're doubting yourself or there are doubters around you वगैरह? What do you say? Like क्या मोटिवेशन है आपका? सो पहला मोटिवेशन तो ये रहता है कि देयर आर बिल्स टू पे. राइट. पहली चीज़. बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द, इट इज़ अ फनी आंसर, बट ठीक है. होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब बाहर के लोगों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना घर के लोगों का या फैमिली या आसपास के लोगों का फ़र्क पड़ता है, फ्रेंड्स का. जब तक सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक मतलब वो पुश, वो सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता है. अगर सक्सेसफुल हो गया तो एवरीवन टेक्स क्रेडिट कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, मैं इसको जानता हूँ, अरे ये तो मेरा ऐसा है. सो ये सब चीज़ें तो चलती ही रहेगी और होती भी है. वी फेस इट. मतलब बहुत सारी बार ऐसा लोग बोल देते हैं कि ये नहीं चलेगा या ये नहीं होगा, और कई बार मज़ा ही उस चीज़ का है कि जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लोगों को गलत प्रूव करने में अगर मुझे कोई चीज़ क्लिक हो गई, मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ द राइट थिंग वी शुड डू और यही होना चाहिए और ये ऐसे ही होना चाहिए. इफ़ मैंने उसके सारे इन एंड आउट देख लिया है, मुझे समझ में आ गई है, फिर मतलब बस लोगों को गलत प्रूव करने में जो मज़ा आता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. तो और गलत भी तब प्रूव करने में मज़ा आता है जब लोग आपके अगेंस्ट बोलते हैं कि दिस विल नॉट सक्सेस, ये नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा. तो जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग, दैट इज़ द वन बेस्ट थिंग आई थिंक दैट ड्राइव्स मी. राइट. एंड सर, आप सक्सेस की बात कर रहे हो तो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आप किस चीज़ पे या क्या बोलेंगे कि एक पॉइंट पे जब वाइट कार्बन मोटर्स आएगा कि ये वाइट कार्बन मोटर्स का सक्सेस है, कि ये मेरा सक्सेस है? सक्सेस तो बहुत दूर है अभी. मतलब बट हाउ मेरी डू नज़र स्टिल से, डिफाइन इट? या तो मेरी नज़र से अभी भी ऐसा है कि 15 साल दूर हैं हम लोग अभी भी. अच्छा. और मेरे लिए सक्सेस तब होगा जब लोग समझ जाएंगे कि वो जो कम्यूट कर रहे हैं सिर्फ उस चीज़ का उनको पे करने की ज़रूरत है, अलग से 2 व्हीलर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. एक ऐप होना चाहिए और जितना भी आप कम्यूट कर रहे हो बस उतना पे करो, ना उसका मेंटेनेंस देखना आपको, ना उसका आफ्टर सेल सर्विस देखना है. मैं ये सेल्स वाला कल्चर ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ. सो जितना आपको यूटिलिटी है, क्योंकि इट इज़ अ एमिनिटी रादर देन, तो बस वही है. तो मैं अगर इस चीज़ को अगर कर पाया तो डेफिनेटली दैट वुड बी सक्सेस फॉर वाइट कार्बन मोटर्स. ओह नाइस. एंड सर, अगर वाइट कार्बन मोटर्स हैड टू हैव अ पर्सनालिटी, तो व्हाट पर्सनालिटी वुड इट बी? पर्सनालिटी एज इन अ पर्सन, जैसे हाँ, लाइक एकदम एग्जिस्टिंग कोई पर्सन होना चाहिए. हाँ, मतलब क्या पर्सनालिटी बोलोगे आप वाइट कार्बन मोटर्स की? एटीट्यूड है वाइट कार्बन मोटर्स में, स्ट्रॉन्ग है, क्या है? आई थिंक विटीनेस होना चाहिए. ओह, एंड व्हाई इज दैट? व्हाई वुड यू लाइक कॉल वाइट कार्बन? लोगों को गलत प्रूव करना है ना. अच्छा, दैट्स द एंटायर पॉइंट. नहीं. So now we'll be moving to our segment 3, which is reality of being a founder. So, sir, I wanted to know, okay, what's the hardest part about being an entrepreneur, and like, what was your biggest setback till now? Okay, so hardest part is मतलब if I would say hardest part तो काफ़ी सारे रहेंगे. There are challenges every day, and the biggest setback की अगर मैं बात करता हूँ तो
हम लोगों ने एक बार एक इन्वेस्टमेंट रेज करने का ट्राई किया था एंड दैट वाज आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. हम वी वर नॉट सीजन एंटरप्रेन्योर जो फंडिंग रेज करना जानते हैं या कैसे होता है. इट इज़ आई पर्सनली बिलीव कि फंडिंग रेज करना भी एक फुल टाइम जॉब है. अगर आपके पास में उस चीज़ के लिए टाइम है तो आप कर सकते हो, बट अगर इफ़ यू आर रनिंग अ कंपनी उसके साथ साथ में फंड रेज करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट. ऐसा है. तो हम लोगों ने एक बार ट्राई किया था रेज करना एंड एक वैल्यू डिसाइड हुआ था, एक परसेंटेज डिसाइड हुआ था. उसके बेसिस पे हम लोगों ने सारा का सारा क्लोजर किया था एंड दे हैड गिवन अस अ टोकन अमाउंट एंड हमने बताया था कि वी वुड बी इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट एंड द नेक्स्ट पार्टी वुड बी इन्वेस्टिंग एक्स अमाउंट. एंड हमारी कंपनी में ऐसा था कि कंपनी कैश रिच थी, कैश पॉजिटिव थी उस टाइम पे, बट हमने बोला कि ठीक है, वी हैड अ सीसी लिमिट फ्रॉम द बैंक. तो हमने बोला कि विल ऑप्ट फॉर दैट सीसी लिमिट क्योंकि हमें भी इन्वेस्ट तो करना है. ही इज़ ऑल्सो इन्वेस्टिंग. तो उन्होंने टोकन अमाउंट दिया एंड टोकन अमाउंट देने के बाद में हमने तो पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करके हमारी इन्वेंट्री सरप्लस कर दी. एटलीस्ट 4 टाइम्स जो हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री होती है उससे भी 4 टाइम्स हम लोगों ने सरप्लस कर दी थी इन्वेंट्री. एंड लेटर ऑन द इन्वेस्टर सेड कि ही वाज नॉट एबल टू इन्वेस्ट द हिज मनी. तो वो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए आफ्टर कोविड कि अब हम इस वेव से कैसे सर्वाइव करें. ऑल्दो वी हैड द इन्वेंट्री बट इतनी ज़्यादा सरप्लस इन्वेंट्री होना भी वॉज नॉट गुड फॉर अस. इट वॉज लाइक मेकिंग द कंपनी डेड. शायद कोई किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, बट ठीक है, ही माइट हैव हिज ओन रीजन जो भी था, आई डोंट नो. सर उसको कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉन नहीं था क्या कोई? फर्स्ट टाइम था ना हमारा. ओके. तो हम लोग भी पेपर वर्क में इतने स्ट्रांग नहीं थे उस टाइम पे. तो वी जस्ट बिलीव ऐसा है कि उन्होंने टोकन अमाउंट दिया था हमें, तो हमें लगा. एंड लेटर ऑन ही आस्क्ड बैक फॉर द सेम टोकन अमाउंट आल्सो एंड हमने वो रिटर्न भी किया. तो ऐसा एक पॉइंट आता है. मतलब वो टाइम भी ऐसा, हाँ शायद जब आपने क्वेश्चन पूछा था ना पहले भी एक बार कि कौन सा टाइम ऐसे फनी वे में आप बोलोगे कि इससे अच्छा तो बंद कर दिया था. तो वो एक टाइम था, बट टाइम की सबसे अच्छी चीज़ ही है कि वो टाइम निकल जाता है. एंड टाइम लगा हमें भी 1.5 साल जैसा लगा कि टू ओवरकम फ्रॉम दैट. ऐसा है. एट दिस स्टेज आई वुड से वी आर ऑलमोस्ट very close to close. Again the company would be very cash positive and other stuff. Great. But it almost took 1.5 year. शायद मैं जो 1-1.5 साल पहले कर सकता था वो अब मैं करूँगा. तो it took me back in the time. Yeah. So I think वो एक setback. But you learned a lot now. अब definitely. Yeah. अब मेरे पास में investors के फ़ोन आते हैं. I just keep on ignoring them. And when you're going through such a hard time, जैसे अभी आपने बताया, is there some belief, is there some principle, is there some moral जो आपके दिमाग में मतलब आपने बिठा के रखा है कि जितना भी hard time आए but यही you go back to thinking about that moral only या that belief only and it like helps you to not get wavered at all. Yeah, so कोई saying? ऐसा था कि जब मैंने ये कंपनी शुरू की थी तब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए बहुत कैपिटल लगता है. एंड उतना कैपिटल, उतनी सेविंग्स थी नहीं. मेरे डैड के पास में थोड़ी लिमिट थी, उन्होंने सारी सेविंग्स डाल दी थी. एंड उन्होंने जो रिस्क लिया था, जो इतने साल की उनकी कमाई थी, जो हमारा घर था, ही मॉर्गेज दैट घर कर दिया और उसके बेसिस पे उन्होंने लोन ले लिया. एंड वो लोन से हमने ये कंपनी शुरू की थी. तो जस्ट कि अगर वो मेरे ऊपर इतना फेथ रख सकते हैं, वो ही कुड इन्वेस्ट मतलब ऑल हिज 40 इयर्स के जितनी भी मेहनत थी, अगर मेरे डैड मेरे ऊपर डाल सकते हैं तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी. तो कई बार ऐसा होता है कि फेल भी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बट वाई वी वॉन्ट टू डू इट बिकॉज ठीक है, एटलीस्ट लोग मुझे कुछ भी बोले चलेगा, बट अगर वो उनको बोलेंगे बिकॉज ही इज़ इन्वेस्टिंग, ही इज़ ट्रस्टिंग ऑन मी, वो तो बर्दाश्त नहीं होता. Definitely. तो वो लोगों को गलत प्रूव करना पड़ता है. That's an amazing answer.
So I recently got to know a very interesting fact about you, which is कि Mr. Prateek Sankla used to be an amazing hip hop dancer. You had a crew or something back in college. So sir, what I'm trying to connect here is कि we've all seen that you're a very creative person. So while handling itna tough schedule and everything, you're busy the entire day. How do you still keep that creativity going? आई थिंक दैट इज़ नेचुरल, क्योंकि वो मेरी अपब्रिंगिंग में ही आ गया है. एंड आई ट्राई टू मतलब चीज़ों को बोरिंग रखना मुझे भी कम पसंद है. तो आई ट्राई टू मेक इंटरेस्टिंग, जैसे सैटरडे को छुट्टी ना देना. सो बट मतलब यही है कि क्रिएटिविटी अपने आप मतलब वो इंसान का आई थिंक कि बहुत अर्ली स्टेज पे ही माइंडसेट डिफाइन हो जाता है कि बहुत लोगों के लिए क्रिएटिविटी एक चैलेंज होगा. बट जो डे टू डे रूटीन में कर रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम में से कोई भी अगर हम सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं तो वो हमें एक रूटीन लगने लग जाता है. सो वो एक पैटर्न की तरीके से सेट हो जाता है कि कोई भी चीज़ करनी है, लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग रादर देन कीपिंग इट वेरी सिंपल या मतलब बहुत माइल्ड रखना है. ठीक है, कई बार ऐसा होगा. सो देयर आर 50% प्रोबेबिलिटी विल सक्सेस और विल फेल, बट फेल भी होंगे तो कुछ तो सीख के जाएंगे. सो दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड दैट कीप्स द आई वुड से दैट कीप्स द होल माइंडसेट एंड एवरीथिंग कीप्स ऑन गोइंग. मतलब स्मूथली चल रहा है. जब तक मैं क्रिएटिव हूँ मुझे लग रहा है कि मैं स्टेबल हूँ. मैं क्रिएटिविटी बंद हो गई तो मुझे लगने लगा कि आई वुड बी अ मतलब मेरे और एआई में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वाइट कार्बन नेम? सो वाइट कार्बन स्पेसिफिकली ऐसा था कि मैं जापानीज़ कल्चर में एनीमे बहुत देखता था, तो मैं वहाँ से उसका फ़ैन बना था. एंड देयर इज़ अ यिंग यांग साइन. हाँ, राइट. सो जिसमें ये बोलते हैं कि एवरी वाइट हैज़ a black dot and every black has a white dot. So I think लोगों की लाइफ में, काम में, हर चीज़ में this is the same thing. So हर अच्छाई के अंदर एक छोटी बुराई भी होगी और हर बुराई में एक छोटी मतलब कुछ अच्छा भी होगा उसके अंदर. So that is all about white carbon. So white carbon भी ये है कि कार्बन एमिशन को हम लोग कम कर रहे हैं. ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए कार्बन एमिशन नहीं होता है. होता है, लिथियम बैटरीज बनाते हैं. बट वो ऐसा होता है कि जहाँ पे भी जिन फैक्ट्रीज में बनता है वहाँ से आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो. रादर देन जो सड़क पे गाड़ियाँ घूम रही हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. बट कोई एक जगह से अगर आपका पोल्यूशन हो रहा है तो आप उस जगह को आप कंट्रोल कर सकते हो. तो आई थिंक इफ़ इट इज़ अ गुड बट it still has something bad inside it. Okay. And if it is something bad, so it still would have something good inside it. ऐसा. So that's the concept of That's all white carbon. Although मैंने ये कभी किसी को बताया नहीं है. मैंने सोचा था कि हाँ ये first podcast में. That is very beautifully said and very interesting as well. मतलब मैं सोच ही रही थी आने से ही पहले कि what is the reason, क्या करूँ, and वो एकदम से मैंने question डाल दिया फिर इसमें. But sir, like looking back in time, अभी you're more experienced. In a lot of terms, you might be more better than your younger self. So looking back in time, if there is any advice, anything you would like to give to the young Prateek who's still struggling, what would you say? अभी आपके experiences सारे देख के वगैरह, if there's any advice. So मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि आई एम इन माई 30s, अर्ली 30s. सो कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ये जितना भी मेरे पास में अभी एट द स्टेज पे जो नॉलेज है वो शायद 2-3 साल पहले आ गया होता तो आई वुड बी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. ऐसा है. सो मुझे लगता है कि मैंने पर्सनली कुछ टाइम वहाँ पे वेस्ट कर दिया जहाँ पे मतलब जैसे होता है एक्सप्लोर करना, नई सिटीज़ घूमना, बस मज़े मस्तियाँ ये सब चीज़ें कर रहे थे. आई वॉज नॉट वेरी फोकस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ पीरियड कि लाइफ को लेके आगे क्या है. वो अगर मेच्योरिटी थोड़ी जल्दी अगर मेरे पास आ गई होती 2-3 साल पहले तो आई वुड बी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. ऐसा है. बट आई स्टिल राइट नाउ आई थिंक कि आज जो मेरे पास में मेच्योरिटी है
कंपेयर टू माई एज ग्रुप पीपल या जो भी लोग देख रहे हैं या काम कर रहे हैं, आई स्टिल फील कि आई एम लिटिल बिट अहेड ऑफ देम. बट आज से 2-3 साल पहले अगर मेरे को वो यंग प्रतीक की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं उस टाइम पे इवेलुएट करता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे साथ वालों की साथ में ही हूँ. आई एम नॉट अहेड ऑफ देम, ऐसा है. बट राइट नाउ आई फील इट. तो आई नो कि समथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक, ऐसा है. तो ये थॉट प्रोसेस अगर मुझे पहले उस टाइम पे आ गया होता, बहुत सब लोगों से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जो मेरे साथ वाले हैं उनसे थोड़ा अगर आगे होता मैं, तो थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर. Okay, okay, thank you. So now we'll be moving to the last segment of the podcast, which is message to the future builders. So sir, what would you say to the students, to everybody who's watching and would want to have a startup of their own but they are scared? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इफ़ यू आर स्कैर्ड तो मतलब फिर तो शुरू ही मत करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों ने पूरी पास्ट जर्नी की बात करी तो मेरे दिमाग में भी वही सब चीज़ें चल रही थी कि एक स्टार्टअप फाउंडर के अंदर और एक मतलब एक एम्प्लॉय के अंदर और एक वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं कि स्टार्टअप फाउंडर्स इकलौते ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा बोल लो कि लाइफ एंड डेथ वाले रिस्क ले सकते हैं. काफ़ी रिस्की होता है. और वो रिस्क लेना इज अगेन द बिगेस्ट थिंग जो अगर आप कर सकते हो. तो इफ़ यू आर स्कैर्ड कि मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा या ये हो जाऊंगा तो देयर इज नो पॉइंट. फिर तो अगर आपके पास में कोई रेडीमेड बिजनेस अगर आपकी फैमिली बिजनेस है तो जस्ट जॉइन इट एंड वहाँ पे बिजनेस डील्स आप देखो, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल डील है उसके बेसिस पे आप कंटिन्यू करते रहो. एम्प्लॉय हो, कंपनी के लिए काम करो, ठीक है. एंटरप्रेन्योर हो, आपको कुछ बिल्ड करना है, यू हैव टू टेक रिस्क. और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फेल होने के, और वो बहुत ज़्यादा चांसेस जो फेल होने के होते हैं ना, दैट चांसेस ओनली मेक यू सक्सेसफुल. अगर आपको डर नहीं लगेगा ना फेल होने का तो आप शायद मेहनत भी नहीं करोगे या सक्सेसफुल भी नहीं होगे. राइट. यू जस्ट ऐसा है कि तो वो जब तक वो आपके वो बोलते हैं ना कि इसकी नोक पे ऐसा कुछ होता है ना, वो कांटे की नोक पे लटकती हुई सुई होती है, ऐसा कि मतलब कभी भी गिरे और ख़त्म. जब तक आपको ऐसा वो पीर प्रेशर नहीं बिल्ड होता तब तक आई थिंक जो स्पेसिफिकली जो जेंजीज की बात कर रहा हूँ मैं, इनका भी ऐसा ही काम करने का तरीका है. मैंने भी जो पैटर्न नोट किया है कि जब तक उनके ऊपर पूरा प्रेशर नहीं आता है तब तक उनका आउटकम परफॉर्मेंस बेटर आता ही नहीं है. सो आई थिंक उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे. Okay. And what kind of people do you think become great founders? नेवर गिविंग अप. सो ये एक सबसे बड़ा मतलब ऐसा है कि जैसे अगर सब लोगों ने देखी है मूवी ये जवानी दीवानी, उसमें रणबीर कपूर बोलता है मैं थोड़ी रोज़ दाल चावल खाऊंगा. सो अगर आप रोज़ दाल चावल नहीं खा सकते हो तो आप अच्छे फाउंडर भी नहीं बन सकते हो. अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं हाक्का नूडल्स खा लूँगा, आज ये कर लूँगा, उस बात का जस्ट ये है कि ऐसा पॉइंट आएगा कि बोरिंग हो जाएगा काम, या काम के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, या आपको ऐसा लगेगा कि नॉट एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. आपको हर बार 100 रीज़न मिलेंगे उसको गिव अप करने का. बट आप एज अ फाउंडर आपको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि कौन सी वो चीज़ थी जिसकी वजह से आई वॉज फाइटिंग, कि क्यों मैंने ये चीज़ पकड़ के रखी है. एंड सेइंग दिस थिंग, ये एडिट में कट जाना चाहिए, बट मैंने मेरे रिलेशंस में भी यही किया है. सो मेरे जो भी पास्ट रिलेशनशिप भी होते हैं तो उसके अंदर ऐसा ही होता था कि 100 रीज़न मिल जाएंगे छोड़ने के लिए किसी को भी, बट एक कौन सा रीज़न होता है जिसके लिए आप स्टिल 100 चीज़ों को माफ़ कर दोगे. मैं ऐसा इंसान हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने आइडिया, अपने
थॉट प्रोसेस को लेके अगर इतने डेडिकेटेड रहेंगे तो वो सक्सेसफुल फाउंडर्स बनेंगे. एंड सर टैलेंट, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी का हमेशा एक पूरा वही रहा है थ्योरी कि ये तीनों चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप से हमेशा कनेक्टेड होते हैं. तो आपके हिसाब से इन तीनों में से क्या मैटर करता है, या इज देयर अ कॉम्बिनेशन टैलेंट, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी? व्हाट इफ यू हैव टू रेट देम, इफ यू हैव टू रैंक देम? टैलेंट से आपको चीज़ें जल्दी मिल सकती है. आप जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो टैलेंट कभी मतलब ज़रूरी नहीं है ना. नहीं, टैलेंट, जिसके पास टैलेंट होगा वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेगा. ओके. कंफर्म क्रिएट कर लेगा. अगर उसके पास टैलेंट होगा वो कैसे भी करके क्रिएट कर लेगा. आज फॉर एग्जांपल आपके पास में 100 रुपये है और आपको एक प्रोडक्ट लेना है जिसका प्राइस है 150 रुपीज़, पर आपको लेना ही है. आपको लेना ही है, कंफर्म आपको लेना है मेघावी को. एंड आई नो कि मेघावी इज़ वेरी गुड एट टॉकिंग, एक्सप्रेसिंग, तो वो कन्विंस कर लेगी. वो बोल देगी कैसे भी करके कि मुझे आप 150 दे दो, मैं लेट कुछ भी एडजस्टमेंट करके वो 150 में वो लेके चली जाएगी. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि टैलेंट अगर होगा, अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर भी आपको चीज़ें मिल जाएगी. राइट, पहली चीज़ ये. तो टैलेंट होगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा. कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने देखा है जिस तरीके से इंडियन इकोसिस्टम काम करता है, स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया में कोई बिजनेस डेवलप कर रहे हो या बिल्ड कर रहे हो, तो आपके पास में कंसिस्टेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो देयर माइट बी, आपको फेल होने के मतलब आपको ऐसे 10 अगर आप एक्सक्यूज़ ढूंढने वाली हो गई ना. फॉर एग्जांपल आपको ऐसा है कि भाई ये रीज़न की वजह से ऐसा नहीं हुआ, आपको रीज़न बोलने के लिए 100 से ज़्यादा रीजंस मिल जाएंगे कि मैं कुछ भी हर बार एक्सक्यूज़ दे के उसको लेट गो कर दूँ. तो आई थिंक कि इंडिया में तो बहुत इजीली मिल जाते हैं. तो वो उन सब चीज़ों से ओवरकम करना ही एक सबसे बड़ा टास्क होता है. तो कंसिस्टेंसी नंबर 1 पे रहेगी मेरे लिए हमेशा. फिर टैलेंट आएगा. ओके. सो नाउ वी आर रीचिंग द एंड पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट. सो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर आपसे कि जितना सक्सेसफुल आप वाइट कार्बन मोटर्स को देखते हो, imagine it has become that successful in your life. So what impact at the end of it do you hope it leaves behind? So the lives would get better. मतलब जितने भी लोग हैं जो वाइट कार्बन से रिलेटेड होंगे, everyone life would be much better. That's it. Okay sir. Okay. So guys, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा किसी को चाहिए भी नहीं. lives better करना तो that should be the goal definitely. This was amazing. This was absolutely amazing, and I truly believe that behind every company there is a person who once had nothing but a dream, an ignition to keep going. And today was not just about business या EVs वगैरह. It is about believing in something before the world does. ऐसा है. तो today, like I said, it was amazing. It was so amazing to have you today. So do you want to say anything at the end? Any message? No, that's it. मतलब ये मेरा पहला पॉडकास्ट था. तो Okay, many more to go. हाँ, many more to go, but इसमें अगर कुछ गलत है तो just edit. नहीं, हम edit तो कुछ भी नहीं करने वाले. Okay, guys, thank you so much for watching us. We'll be back soon again with a new episode. Till then, stay on the move. And second, please follow us on Instagram. Link is in description. See you. Bye bye. And we miss you, Riddhi. And we miss you, Riddhi. मजा आया. ठीक है, अच्छा मजा है. मेरे को मजा है. अभी मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे. अभी क्या था? मैंने कुछ भी नहीं किया. इतना पसंद आ गया उसको बहुत पसंद आ गया उसको.